Assalamualaikum, all my dear students. Today we are here again with a new video for Standard 10. ये वीडियो मुंबई महानगर पालिका के वर्चुअल क्लास की तरफ से पेश किया जा रहा है। मैं अंसारी राशिद अख्तर 10th स्टैंडर्ड इंग्लिश के एक नए लेसन के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेसन। चलिए शुरुआत करते हैं आज की हमारी पोएम यूनिट 4 की फर्स्ट पोएम है 4.1 जिसका टाइटल है द वर्ड इज माइन। उसके पोइटिस हैं जॉय लॉलिट क्रॉफर्ड, है ना, जिनका नाम ऊपर ही रेड में लिखा हुआ है। अगर हम बुक में देखेंगे तो बुक में जो भी पोएट होते हैं उनका नाम लास्ट में लिखा हुआ होता है। यहाँ पर इस पीपीटी में इस जो पीडीएफ फाइल है इसमें ऊपर लिखा हुआ है। पहले हम पोएम को एक मर्तबा रीड करते हैं। रीड करने के बाद उसके बाद हम लोग उसके मीनिंग्स को समझेंगे। ओके, आई रीड द लाइन्स, यू लिसन केयरफुली। लाइन्स हमारे सामने। टुडे ऑन अ बस I saw a lovely girl with silken hair. Today on a bus, I saw a lovely girl with silken hair. I envied her. She seemed so gay, and I wished I was so fair. I envied her. She seemed so gay, and I wished I was so fair, when suddenly she rose to leave. When suddenly she rose to leave, I saw her hobble down the aisle. I saw her hobble down the aisle. Oh God, forgive me when I whine. I have two legs, the word is mine. I have two legs, the word is mine. Next stanza. Second stanza है, and then I stopped to buy some sweets. And then I stopped to buy some sweets. The lad who sold them had such charm. I talked with him, he seemed so calm, and if I were late, it would do no harm. And as I left, he said to me, and as I left, he said to me, thank you, you have been so kind. Thank you, you have been so kind. It's nice to talk with folks like you. You see, I'm blind. It's nice to talk with folks like you. You see, I'm blind. Oh God, forgive me when I whine. I have two eyes. The word is mine. Next stanza है, later, walking down the street, I saw a child with eyes of blue. Later, walking down the street, I saw a child with eyes of blue. He stood and watched the others play. It seemed he knew not what to do. It seemed he knew not what to do. I stopped a moment, then I said, I stopped a moment, then I said, why don't you join the others, dear? Then I said, why don't you join the others, dear? He looked ahead without a word. Then I knew he could not hear. He looked ahead without a word, and then I knew he could not hear. Oh God, forgive me when I whine. I have 2 ears.
The word is mine. With legs to, the last stanza. With legs to take me where I'll go. With legs to take me where I'll go. With eyes to see the sunsets glow. With ears to hear what I would know. Oh God, forgive me when I whine. Oh God, forgive me when I whine. I'm blessed indeed. The word is mine. The word is mine. Okay, so ये थी हमारी पोएम जिसमें हम देख रहे हैं there are 4 stanzas, ना? इन 4 stanzas के बारे में अगर हम थोड़ा सा गौर करें तो हमें समझ आ रहा है कि इसमें जो लाइंस की साइज है वो छोटी बड़ी हुई है ना, लेकिन हर 2 लाइन उसमें राइम होती है ना, हर 2 लाइन की एक तरीके से जोड़ बनी हुई है। हर 2 लाइन को अगर हम गौर करें तो राइमिंग वर्ड्स होते हैं। चलिए देखते हैं किस तरह से फर्स्ट स्टांजा पर आ जाएंगे, उसका मीनिंग हम समझते हैं। टुडे ऑन अ बस आई सॉ अ लवली गर्ल विथ सिल्कन हेयर। ठीक है, यहाँ पर ये मैंने जो ब्रेक कर करके पढ़ा हुआ है ताकि हर फ्रेज को हम समझ सके। टुडे ऑन अ बस आई सॉ अ लवली गर्ल विथ सिल्कन हेयर। इस तरह से हम इस सेंटेंस को 5 to 6 पार्ट्स कर सकते हैं, है ना। हम फ्लो में पढ़ेंगे तो इस तरह पढ़ा जाएगा, टुडे ऑन अ बस आई सॉ अ लवली गर्ल विथ सिल्कन हेयर। कि आज ऑन अ बस से मुराद के जब वो बस में सवार थी ना, जो पोइटिस हैं वो जब बस में सवार हुई तो आई सॉ अ लवली गर्ल, मुझे एक बहुत ही खूबसूरत सी लड़की नजर आई, बहुत ही प्यारी सी एक लड़की नजर आई विथ सिल्कन हेयर ना, उसके जो हेयर थे, उसके जो बाल थे वो सिल्कन थे, रेशमी बाल थे ना, यानी उसके बाल बहुत खूबसूरत नजर आ रहे थे। अब उन खूबसूरत बालों को आई इन्वेड हर, इनवे ये जो वर्ड बनता है ENVY से, इनवे का मतलब होता है हसद करना। हसद करना क्या होता है तो आपने उर्दू में भी सबक पढ़ा हुआ है, रश्क हसद वगैरह इस तरह के सबक होते हैं। हसद करना यानी किसी के पास कोई चीज है, कोई नेमत उसके पास है तो उसे देखकर इस बात पर अफसोस करना कि उसके पास है तो मेरे पास क्यों नहीं है ना। इस फीलिंग को कहा जाता है इनवे, राइट। तो ये ध्यान रखेंगे। उसी का पास्ट टेंस दिया हुआ है, आई इन्वेड हर ना, शी सीम्ड सो गे। सीम यहाँ पर वर्ब है। सीम का मतलब होता है महसूस होना, ऐसा लगना। सो गे का मतलब होता है ब्यूटीफुल। गे मीन्स ब्यूटीफुल ना। गे का एक दूसरा मीनिंग भी होता है जिसे उर्दू में हम जिन्स परस्त कहते हैं, है ना, जो कि एक किस्म का बहुत बड़ा गुनाह है। यहाँ पर जो वर्ड गे यूज किया हुआ है उसका मीनिंग होता है ब्यूटीफुल। गे का मतलब होता है ब्यूटीफुल। शी सीम्ड सो ब्यूटीफुल, शी सीम्ड सो गे, वो इतनी खूबसूरत नजर आ रही थी। एंड आई विश्ड आई वॉज सो फेयर, और उसे देखने के बाद आई विश, मेरे अंदर ऐसी ख्वाहिश पैदा हुई, मुझे ऐसा लगा कि काश मैं भी इतनी ही खूबसूरत होती। आई वॉज सो फेयर, है ना, कि काश। देखिए, जब हमें किसी चीज के साथ इस तरह का जुमला कहना हो ना कि काश मुझे पहले से मालूम होता, काश मैं ऐसा होता, तो उस वक्त ये स्ट्रक्चर यूज करते हैं, आई विश आई वॉज, और उसके आगे फिर जिस चीज के बारे में हम काश कह रहे हैं ना वो कहना होता है। जैसे आई विश आई वॉज इन द क्लासरूम, है ना, आई विश आई कुड टीच यू इन द क्लासरूम, कि काश मैं आप लोगों को क्लासरूम में पढ़ा पाता।
तो एक तरीके की ये जो काश वाली जो फीलिंग होती है उसको बयान करने के लिए आई विश कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर पोएटिस क्या कह रहे हैं कि मुझे बस में एक लड़की नजर आई जिसके सुनहरी बाल थे, जो कि बहुत ही खूबसूरत नजर आ रही थी। उसे देखकर मुझे हसद हो रही थी कि वो इतने खूबसूरत है कि काश मैं भी वैसे ही खूबसूरत होती। When suddenly she rose to live. When suddenly she rose to live. Rose. अब आप में से बच्चों को कुछ को ऐसा लगेगा रोज का मीनिंग तो होता है गुलाब, राइट? लेकिन यहाँ पर ये जो रोज वर्ड यूज किया हुआ है ये वर्ब है, और ये वर्ब बनता है राइज से, RISE, राइजिस। जैसे हम लोग कहते हैं सनराइज, तो उसमें जो राइज यूज हो रहा है RISE, राइज का मतलब होता है ऊपर उठना। यहाँ पर मुराद ये है कि जिस सीट के ऊपर वो लड़की बैठी हुई थी वहां से वो खड़ी हो गई। ओके, व्हेन शी रोज यानी जब वो खड़ी हुई, टू लीव, लीव का मतलब उतरने के लिए, यानी वो बस में बैठी हुई थी, बस से निकलने के लिए, बस को छोड़कर नीचे उतरने के लिए वो जैसे ही खड़ी हुई, आई सॉ हर, मेरी नजर जब उस पर पड़ी मैंने उसे देखा, हॉबल डाउन द एल, है ना। हॉबल डाउन का मतलब होता है पैर को घिसड़ते हुए चलना, यानी पैर से माजूर होना या लंगड़ा होना। कि वो चेहरा और उसके बाल वो तो बहुत ही खूबसूरत नजर आ रही थी कि मुझे अपने आप पर हसद हो रही थी कि इतनी खूबसूरत है, काश मैं भी ऐसे ही होती। लेकिन जैसे ही वो खड़े होकर, ये जो वर्ड लिखा हुआ है AISLE, उसमें एस जो है वो साइलेंट रहता है, ध्यान रखना रहेगा, उसे एल पढ़ेंगे। जैसे हम ऑयल पढ़ते हैं OIL, ऑयल, उसी तरह से इसे एल पढ़ेंगे। तो एल कहते हैं जो बस में जो सीट्स के दरमियान रास्ता होता है उस रास्ते को एल कहते हैं। तो वो जैसे ही बस में से उतरने के लिए उस रास्ते से गुजर रही थी तो मैंने क्या देखा, आई सॉ हर हॉबर डाउन, उसे लंगड़ाते हुए अपने पैरों को घसीटते हुए देखा। जैसे ही पोएटिस ने ये मंजर देखा तो उन्होंने क्या कहा, ओ गॉड फॉरगिव मी व्हेन आई वाइन, है ना। फौरन ही उन्होंने एक तरीके से फॉरगिव किया, इन्हें तौबा की, खुदा से माफी मांगी। किस चीज के लिए, कि व्हेन आई वाइन कहते हैं किसी बात पर अफसोस करना या किसी बात पर शिकायत करना, कि वो देखो, जैसे शुरू में जो उन्होंने तारीफ की तो तारीफ के तरीके से एक तरीके से क्या कर रहे हैं, वो खुदा को शिकायत करे ना कि वो लड़की इतनी खूबसूरत है तो मैं उसकी तरह खूबसूरत क्यों नहीं हूं। तो ये एक तरीके से खुदा से शिकायत कर रहे थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि उस लड़की के तो वो पैर से माजूर है, वो लंगड़ा कर चल रही है, तो उन्होंने फौरन ही खुदा से रुजू किया, वहां पर माफी मांगी और कहा, आई हैव 2 legs, मेरे तो 2 पैर हैं जो बिल्कुल सही है, सलामत है, द वर्ल्ड इज माइन, और इन 2 पैरों की वजह से ये सारी दुनिया मेरी है। सारी दुनिया है मेरी, ऐसे मुराद कि मैं जहां जाना चाहूं आसानी से मैं चल सकती हूँ, दौड़ सकती हूँ, ऊपर की तरफ चढ़ सकती हूँ, नीचे उतर सकती हूँ। लेकिन इस तरह जो ये खूबसूरत लड़की नजर आ रही थी, चूंकि उसके पैर से वो माजूर है इसलिए वो मेरी तरह नहीं कर सकती, इसलिए मैं ही बेहतर हूँ। और इस तरह एक शुक्रगुजारी का उन्होंने लास्ट में इजहार किया। ओके, तो यहाँ पर कई सारे नए वर्ड्स आ रहे थे। सबसे पहला उसमें वर्ड आया हुआ है इनवे, उसके बाद सेकंड वर्ड आया हुआ है गे, उसके बाद नेक्स्ट आया हुआ रोज और हॉबल डाउन एल। इस तरह से 5 नए वर्ड्स हैं। उसके बाद लास्ट की लाइन में है वाइन। वाइन कहते हैं शिकायत करना को, चिड़चिड़ेपन को, या अपने आप को कम, कोई चीज कम मिली है उस बात की शिकायत करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड स्टांजा है, एंड देन आई स्टॉप्ड टू बाय सम स्वीट्स, एंड देन आई स्टॉप्ड टू बाय सम स्वीट्स, है ना। अब आगे दूसरा एक वाकया क्या बता रही हैं कि जब मैं एक दुकान पर रुकी ताकि कुछ मैं स्वीट्स खरीद सकूं, है ना, कुछ मिठाइयां खरीद सकूं। देखिए यहाँ पर बच्चों एक चीज, स्टॉप में जब डी लगता है तो इस तरह से डबल पी हो जाता है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना रहेगा। स्टॉप का पास्ट टेंस हो जाता है स्टॉप्ड, और उसमें स्टॉप्ड लगाते वक्त हमेशा डबल पी लिखकर ईडी लगाते हैं।
आगे लाइन है, द लैड who sold them had such charm. I talked with him. He seemed so calm, and if I were late, it would do no harm. है ना, क्या हुआ वहां पर? द लैड, लैड कहते हैं लड़के को। लड़के से मुराद जो लड़का उस दुकान में काम कर रहा है, उसकी जगह पर हम बॉय भी यूज कर सकते हैं, है ना। द बॉय हु सोल्ड देम, तो द बॉय और द लैड दोनों सेम वर्ड्स है। द लैड हु सोल्ड देम हैड सच अ चार्म, कि वो जो लड़का मिठाइयां फरोख्त कर रहा था, स्वीट्स बेच रहा था, वो बहुत ही चार्म था। चार्म कहते हैं खुश खुर्रम होने को, बहुत ज्यादा उसके चेहरे पर एक खुशी का जज्बा था, यानी वो खुशदिली से बात कर रहा था। ऐसा होता है ना, कुछ लोग जब हम बात कर रहे होते हैं तो बात करने में हमें अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि हम जब बात करते हैं तो वो खुशी से बात करे तो हमें वो चार्मफुल होता है, अच्छा लगता है। देन आई टॉक्ड विथ हिम, जब मैंने उससे बात की, ही सीम्ड सो काम, ना, जब मैंने उससे बात की, ही सी, देखिए यहाँ पर सीम का वर्ड फिर यूज हुआ है, ही सीम्ड सो काम, वो कितना काम नजर आता, CALM, उसमें एल साइलेंट होता है, ये ध्यान रखेंगे, काम, CALM में एल साइलेंट है, काम, जिस तरह से चार्म था उसी तरह से है, लेकिन यहाँ पर एल को साइलेंट रखना रहेगा। ही सीम्ड सो काम, वो कितना काम नजर आ रहा था। काम कहते हैं पुरसुकून को, कि वो कितना पुरसुकून नजर आ रहा था। एंड इफ आई वर लेट, कि अगर मुझे देर नहीं हो रही होती, इट वुड डू नो हार्म, कि अगर मुझे थोड़ा देर भी हो जाए, यानी अगर मैं उससे बात करती रहूं और थोड़ा देर भी हो जाए, तो इट वुड डू नो हार्म, मुझे कोई बहुत ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचेगा, यानी मुझे कहीं जाने में देर नहीं होगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कि अगर मुझे थोड़ी देर भी हो जाए तो इसमें कोई नुकसान की बात नहीं है, यानी उससे बात करने में इफ आई वर लेट, अगर मुझे देर भी हो जाए तो उसमें कोई नुकसान की बात नहीं है। एंड एज आई लेफ्ट ही सेड टू मी, एंड एज आई लेफ्ट, सबसे पहली बात यहाँ पर ये जो एज का वर्ड यूज हुआ है, आपको ध्यान रखना है, एज दो तरह से यूज होता है। एक एज का मतलब होता है के जैसा, जिसे हम लोग लाइक कहते हैं ना, लाइक अ गार्डन, लाइक अ डायमंड, लाइक अ बटरफ्लाई। तो एक एज का मीनिंग वैसे होता है, एज अ गार्डन, एज अ फ्रेंड, एज अ डायमंड, एज अ बटरफ्लाई, इस तरह के एज का वर्ड होते हैं, जहां पर उसका मीनिंग होता है के जैसे, की तरह से। और एज का दूसरा मीनिंग होता है व्हेन, जब। तो यहां पर दूसरा वाला मीनिंग होगा कि एज आई लेफ्ट, जब मैं वहां से जाने लगी, ही सेड टू मी, उसने कहा, आई थैंक यू। ओके, एज आई लेफ्ट ही सेड टू मी, है ना, जब मैं वहां से निकलने लगी, यानी जब मैं वहां से आगे बढ़ने लगी, जब मेरा काम हो चुका था और मैं वहां से निकलने लगी, तो उसने कहा, क्या कहा? आई थैंक यू, कि मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। किस बात पर? तो आगे उसने कहा, यू हैव बीन सो काइंड, क्या आप कितने काइंड हो, काइंड यानी रहम दिल, क्या आप कितने रहम दिल हैं। इट्स नाइस टू टॉक विथ फोक्स लाइक यू, कि आपके तरह के जो फोक्स होते हैं, फोक्स मतलब लोग, आपकी तरह से जो लोग होते हैं, जो इस तरह से बात कर रहे होते हैं, उनसे बात करने में बहुत अच्छा लगता है, इट्स नाइस। और फिर आगे उसने एक राज की बात कही, उसने कहा, यू सी आई एम ब्लाइंड, है ना, कि आपने गौर किया, मैं ब्लाइंड हूं। ब्लाइंड यानी मैं नहीं देख सकता, मेरी आंखें नहीं है, मैं नाबीना हूं। अब जैसे ही देखिए, एक चीज है यहां पर जो ऊपर की लाइन से है ना, चार्म होना, यानी क्या, बहुत ज्यादा खुशदिली से बात करना। काम, उसके नीचे लाइन में आया था, काम यानी पुरसुकून हालत में होना। तो ये चीजें भी सब में नहीं होती। हम जितने लोगों से मिलते हैं तो लोग अपनी अपनी उलझनों में होते हैं, परेशानियों में होते हैं, और
अलग अलग तकलीफों में मुब्तला होते हैं। लेकिन यहाँ पर जब ये दो बातें उस लड़के के ताल्लुक से पोएटिस ने गौर की तो उनको एक तरीके से फिर से थोड़ा सा एक रश्क आ रहा था ना कि ये लड़का कितना अच्छा है, इतना सुकून से है, अपना काम कर रहा है और इतना हंसकर वो बातें कर रहा है। लेकिन जैसे ही उसने कहा कि यू सी आई एम ब्लाइंड, कि मैं नाबीना हूं, मैं नहीं देख सकता, तो पोएटिस को फिर से एहसास हुआ और उन्होंने फिर से वही लाइन से यहाँ पर रिपीट की, ओ गॉड फॉरगिव मी, क्या खुदा मुझे माफ कर दीजिए, व्हेन आई वाइन, जब मैं इस तरीके की शिकायत कर रहा हूं, आई हैव टू आईज, मेरी तो दो आंखें हैं, द वर्ल्ड इज माइन, ना मेरी दो आंखें हैं, इससे मुराद यहाँ पर कि मेरी आंखें हैं, मैं हर चीज को अपनी आंखों से देख सकता हूं, और ये लड़का तो इतना खुश है, उसके बावजूद वो किसी चीज को देख नहीं सकता। इसलिए वो फिर से रब का शुक्रिया अदा कर रही हैं कि मेरे पास ये जो आंखें हैं, मैं तो उससे तमाम चीजों को देख सकती हूँ, और द वर्ल्ड इज माइन, ये दुनिया मेरी है, यानी ये दुनिया मेरे कंट्रोल में है, मैं जैसे चाहूं इसे अपनी नजरों को, अपनी आंखों को इस्तेमाल कर सकती हूँ। नेक्स्ट स्टांजा है, लेटर walking down the street I saw a child with eyes of blue. later ना, लेटर यानी उसके बाद, उसके बाद से मुराद क्या कि जब वो उस दुकान पर से मिठाइयां लेकर आगे बढ़ गई तो उसके बाद आगे क्या हुआ, I saw a child, है ना, walking down यानी पैदल चलते हुए जब वो जा रही थी ना, डाउन का मतलब यहाँ पर नीचे नहीं होता है, डाउन का मतलब क्या होता है कि जब हम किसी मंजिल की तरफ पहुंच रहे होते हैं ना, तो उस वक्त इस तरह से डाउन का वर्ड यूज किया जाता है। जैसे जब हम उस मंजिल की तरफ पहुंच रहे हैं, आपने ये वर्ड सुना होगा, आई गो टू स्कूल। गो टू क्यों कहते हैं, क्योंकि हम स्कूल में नहीं रहते, वो एक जगह है, हम सिर्फ वहां पर जाते हैं, है ना। तो जब किसी जगह दूर की तरफ इशारा हो तो हम टू का इस्तेमाल करते हैं, और जब किसी करीब की तरफ पहुंचने का इशारा हो तो डाउन का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि लेटर वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट, जब मैं गली में से ना, स्ट्रीट यानी गली में से गुजर रही थी, आई सॉ अ चाइल्ड, मेरी नजर एक बच्चे पर पड़ी, विथ आईज ऑफ ब्लू, जिसकी आंखें ब्लू थी, है ना। आईज ऑफ ब्लू से मुराद यहाँ पर नीली आंखों वाला खूबसूरत बच्चा। He stood and watched. He stood and watched the others play. It seemed he knew not what to do. He stood and watched the others play. It seemed he knew not what to do. वो लड़का जिसकी आंखें बहुत खूबसूरत थी, बहुत प्यारी थी, वो वहां पर खड़ा हुआ था और देख रहा था others play, दूसरे बच्चों को खेलते हुए। It seemed, ऐसा लग रहा था, he knew not what to do, ऐसा लग रहा था जैसे उसको पता ही नहीं है कि यहाँ पर करना क्या है, या ये जो दूसरे लड़के हैं वो क्या कर रहे हैं, उसको समझ नहीं आ रहा था। I stopped a moment, मैं एक पल के लिए वहां पर रुकी, then I said, और फिर मैंने कहा, why don't you join the others dear? Why don't you join the others dear? तुम दूसरे बच्चों के साथ क्यों नहीं खेल रहे हो? और डियर से मुराद यहाँ पर एक तरीके से प्यार से कहने के लिए उन्हें कहा कि प्यारे बच्चे, तुम यहाँ पर क्यों खड़े हो, उन लोगों के साथ क्यों नहीं खेल रहे हो? He looked ahead without a word. He looked ahead, वो आगे की तरफ देखता रहा, and without a word, without a word यानी उसने कुछ कहा नहीं, वो खामोश रहा और सिर्फ उन दूसरे बच्चों को जैसा वो पहले से देख रहा था वैसे ही देखता रहा। Then I knew, ना, न्यू KNEW, न्यू का मतलब होता है जानना, ये नो से बनता है KNOW, नो यानी जानना, किसी बात का मालूम होना। Then I knew, तो मुझे मालूम हुआ, he could not hear, कि वो सुन नहीं सकता, कि वो जो लड़का है he could not hear, वो मेरी बातों को सुन नहीं पा रहा है, यानी वो बहरा है, वो डेफ है। Oh God, forgive me when I whine,
और फिर से यहाँ पर राइटर जो उसकी आंखों को देखकर वो रश्क करे थे ना कि कितनी प्यारी आंखें हैं, लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि वो लड़का तो सुन ही नहीं सकता, वो बहरा है, तो फौरन उन्हें एहसास हुआ और उन्होंने गॉड से माफी मांगी और कहा, ओ गॉड फॉरगिव मी व्हेन आई वाइन, आई हैव 2 ears, द वर्ड इज माइन। कि मेरी 2 आंखें हैं, 2 कान हैं, 2 ears, मेरे 2 कान हैं और मैं हर चीज को सुन सकता हूँ, समझ सकता हूँ। द वर्ल्ड इज माइन, ये दुनिया मेरी है, यानी मैं इस दुनिया के तमाम नेमतों को इस्तेमाल कर सकता हूँ। फिर आगे की स्टांजा में उन्होंने तमाम चीजों को एक साथ रैप अप कर लिया हुआ है। कहते हैं, विथ लेग्स टू टेक मी वेयर आईल गो, with legs to take me where I'll go, with eyes to see the sunsets glow, with ears to hear what I would know। तीनों चीजों के बारे में बताया। पहला क्या कह रहे हैं, with legs, कि मेरे जो पैर हैं, to take me where I'll go, कि मैं जहां पर जाना चाहूं ये मुझे लेकर जाते हैं। with eyes to see the sunsets glow, कि सनसेट जो हो रहा होता है, यानी सूरज जो डूब रहा होता है, सूरज जब गुरूब होता है तो उस वक्त जो उसकी खूबसूरती होती है ना, उसकी जो ग्लो, जो चमक होती है, मैं उसे अपनी आंखों से देख सकता हूँ। एंड विथ ईयर्स टू हियर, और अपने कानों से मैं सुन सकता हूँ। व्हाट आई वुड नो, जिन चीजों के बारे में मैं जानता हूँ, उन चीजों की मैं आवाज से, परिंदों की आवाजें हैं तो मैं सुन सकता हूँ, जानवरों की आवाजें हैं तो मैं सुन सकता हूँ, हवा चल रही है तो उसकी वजह से आवाज हो रही है तो मैं सुन सकता हूँ। मैं ये तमाम नेमतें मुझे हासिल है, मेरे पास मौजूद है। तो ओ गॉड फॉरगिव मी, कि ऐ खुदा मुझे माफ कर दीजिए। व्हेन आई वाइन, यानी जब मैं अफसोस कर रहा था, दूसरों को देखकर मैं रश्क कर रहा था। आई एम ब्लेस्ड इंडीड, कि यकीनन मैं ब्लेस्ड हूं। ब्लेस्ड यानी खुशनसीब होना, है ना। ब्लेस्ड यानी खुशनसीब होना, कि मेरे ऊपर आपकी कितनी नेमतें हैं। इंडीड, इंडीड यानी जरूर, यकीनन, वाकई में। द वर्ल्ड इज माइन, और ये सारी दुनिया मेरी है, यानी मैं इन दुनिया की तमाम नेमतों को यूज कर सकता हूं, उनसे लुत्फ अंदोज हो सकता हूं, उनसे फायदा उठा सकता हूं। तो ये थी हमारी पोएम, जिसमें हम देख रहे हैं कि देयर आर 4 स्टांजास, जिसमें एक खास फीलिंग हमें समझ आ रही है कि जो पोएट हैं वो किस तरह अपनी नेमतों को, पहले उन्होंने गौर नहीं किया, लेकिन जब उन्होंने दूसरे लोगों को देखा और उनके पास जिन चीजों की कमी थी, तो उन कमियों को देखने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि मेरे पास तो इनसे ज्यादा बेहतर चीजें हैं, कि मैं अब उन नेमतों को इस्तेमाल करके बहुत सारे काम कर सकती हूँ। तो ये थी हमारी पोएम। अब पोएम के साथ यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज दी हुई हैं। एक्टिविटीज में हम देखेंगे एप्रिसिएशन ऑफ पोएम। एप्रिसिएशन ऑफ पोएम में जैसा कि हम जानते हैं, आमतौर से ये 5 पॉइंट्स होते हैं। उन्हीं 5 पॉइंट्स को यहाँ पर लिया हुआ है। सबसे पहला पॉइंट रहता है टाइटल। पोएम का टाइटल हमें बताना है। जैसा कि हमने शुरू में ही देखा, टाइटल जो था द वर्ड इज माइन, ये इसका टाइटल हो गया। टाइटल के बाद नेक्स्ट है इसके पोएट या ऑथर का नाम बताना है। तो पोएम के लास्ट में लिखा हुआ रहता है जॉय लॉलिट क्रॉफर्ड। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं ये लेसन आपको समझ आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज, गुड बाय।